Okay, welcome guys. Before you watch this video, I'll remind you again, I have shared the links of the previous video of functions. That is just before the inverse trigonometric functions. I introduced the kinds of functions like one to one, many to one, into, onto. So that definitions, that types of functions you need to go through again before you watch this video, because in this video I'm going to do only the examples, right? So this is like continuation of functions, but here in some of the functions we are going to use application of derivatives chapter part, that is monotonicity, maxima minima. Okay, so that's why now we have started again with the chapter functions. We have already done a lot, domain, range and all. We know what are the different types of functions, their graphs and all. We have done a lot about functions, and you have been writing formulae also daily. So functions के बारे में काफ़ी मालूम है. Now we are going to do a particular part of the functions where we have to identify what kind of function do we have. Okay, so the first function which we have here is x cube minus 1. Function is x cube minus 1. Function has domain as all real numbers. Understand, इसको हम लोग domain बोलते हैं. This is called as domain. This is called as codomain, not the range. Please keep that in mind. This is called as codomain, not the range. Okay, range हम लोग को find करना पड़ेगा. Yes, so पहले ये फंक्शन जो है एक्स क्यूब माइनस 1, अगर उसका हम लोग ग्राफ बना सकते हैं तो डायरेक्टली ग्राफ ही बना देते हैं. एंड इट इज पॉसिबल बिकॉज एक्स क्यूब का ग्राफ मुझे आता है, राइट? द एक्स क्यूब ग्राफ गोज लाइक दिस. ओके, एक्स क्यूब के ग्राफ में 1 पे आउटपुट 1 आता है, राइट? 0 पे आउटपुट वी आर गोइंग टू गेट इट एज 0. -1 पे हम लोग को आउटपुट -1 आता है, तो दैट इज एक्स क्यूब का ग्राफ. अभी इसमें इनपुट भी रियल नंबर्स है, आउटपुट भी सारे रियल नंबर्स है. सो द फंक्शन इज गोइंग फ्रॉम R to R. एंड लुक एट द ग्राफ. कोई भी जगह पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एक इनपुट के 2 आउटपुट है. दैट यू कैन परफॉर्म horizontal line test. You can perform horizontal line test for that. ये मैंने आपको सिखाया हुआ है. Horizontal line test में will make a horizontal line, and for a particular output, say y equal to y1, there is only one point, there is only one input x1. So ऐसे हर आउटपुट के लिए अगर आप ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओगे, हर आउटपुट के लिए आपको एक ही इनपुट मिलेगा. That is also a method by which you can find out whether the function is 1 to 1 या many to 1. 1 to 1 मतलब every input should have unique output. वो तो function का ही definition है, but here two different inputs will not have the same output. Many to 1 function में 2 different inputs का same output होता है. यहाँ पे 2 अलग अलग input अगर रहेगा तो 2 अलग अलग output होना चाहिए. दैट इज व्हाट डेफिनेशन ऑफ 1 to 1 इज. ओके, सो ये तो हो गया मेरे फंक्शन एक्स क्यूब का ग्राफ. बट मुझे जो फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 1. सो एक्स क्यूब माइनस 1 फंक्शन पे क्या होगा? एट 1 द आउटपुट इज गोइंग टू बी 0. एट 0 द आउटपुट इज गोइंग टू ड्रॉप डाउन टू -1. At -1 the output is going to be now -1, -2. So ऐसे जितने भी इनपुट्स रहेंगे सब जगह पे आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा बाय 1 यूनिट. सो इसके नीचे ही आपको ग्राफ मिल जाएगा. आउटपुट्स विल डिक्रीज बाय 1 यूनिट एंड यू गेट अ फंक्शन का ग्राफ. दैट ग्राफ इज एक्स क्यूब माइनस 1 ग्राफ. ओके, एक्स क्यूब माइनस 1 ग्राफ में क्या होगा? एक्स क्यूब का ही ग्राफ है, एक यूनिट नीचे आ जाएगा. दिस ऑलरेडी वी हैव डन, दिस ऑल ट्रांसफॉर्मेशंस वी हैव डन. सो यहां पे भी कोई चेंज नहीं है. इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग
graph. Okay, all these monotonically increasing graphs are one-to-one functions. Okay, वैसे ही होने वाला है यहां पे, कहीं पे भी आपको टर्निंग नहीं मिल रहा है. एवरी single input has a different output. No two inputs have same output. It will also satisfy the horizontal line test. अच्छा, इसको हम लोग, हमारे एक्सप्लेनेशन को हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स. सो अगर मैं f डैश x फाइंड करता हूं, डेरिवेटिव दोनों के लिए काम करेगा, दोनों का सेम ही आएगा, 3x स्क्वायर आएगा. दोनों का सेम ही डेरिवेटिव आएगा. एक्स क्यूब का ले लो या एक्स क्यूब माइनस 1 का ले लो, दोनों का डेरिवेटिव सेम आएगा. दोनों का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर. सो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, x स्क्वायर इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर का वैल्यू कभी नेगेटिव होगा नहीं, वो तो हमेशा 0 है या तो 0 से बड़ा है. तो 3x स्क्वायर इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब 3x स्क्वायर अगर 3 से मल्टीप्लाई करके तो साइन चेंज होने नहीं वाला है. सो f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो डेरिवेटिव 0 कहां पे आएगा, इक्वल टू 0 कहां पे आएगा? इक्वल टू 0 यहां पे आएगा, खाली एक पॉइंट पे. That is when x is 0. वहां पे आपको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिलेगा दोनों ही ग्राफ्स में. सो यहां पे आप बोल सकते हो ग्राफ इज लाइक टेंजेंट 0 गोइंग अप, टेंजेंट 0, टेंजेंट का स्लोप 0 डाउन. सो ये हो जाता है अपना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे डेरिवेटिव 0 है, आपको डबल डेरिवेटिव भी 0 मिलेगा. और आप ऐसा बोल सकते हो कि डेरिवेटिव 0 होने के बाद भी ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है. डेरिवेटिव यहां पे 0 रहेगा. At x equal to 0, the derivative is going to be 0. F dash 0, the derivative is going to be 0. But यहां पे डेरिवेटिव 0 होने के बाद भी ना तो मैक्सिमा रहेगा ना तो मिनिमा रहेगा. लेफ्ट में भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, राइट में भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और इसीलिए फंक्शन 1-to-1. ओके, एंड यस वी कैन से यहां पे फंक्शन एक तो 1-to-1 है. दूसरा, आपको रेंज जो है फंक्शन का, रेंज, यू कैन सी द रेंज ऑफ द फंक्शन is covering everything, all y coordinates, minus infinity से infinity, all the real coordinates it is covering. So range is all real numbers. So range is equal to कोडोमेन. कोडोमेन भी तो सारे रियल नंबर्स है. Range is equal to all real numbers, range is equal to codomain. Therefore, function is onto. Okay? Range equal to codomain आ गया, मतलब function onto है. तो ये वाला function क्या है? 1-to-1 and onto function. Okay? So this is the type of the function. As I said, हम लोग को खाली सम्स करने ये लेक्चर में, बाकी थियरी और जो भी इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूं इन द प्रीवियस वीडियोस. सो दिस इज अ फंक्शन व्हिच इज 1-to-1 एंड onto. वी कैन टेक द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स आल्सो, बट यहां पे इसका जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक्स्ट्रा सिखाया है. ग्राफ बन जाएगा, समझ में आ जाएगा. तो इसमें भी मैं डेरिवेटिव नहीं लूंगा, इसमें भी ग्राफ से हो जाएगा अपना. जहां जहां ग्राफ से हो जाता है प्लीज डू इट बाय ग्राफ. ओके, प्लीज डू इट बाय ग्राफ. जहां जहां पे ग्राफ हो जाता है, तो फॉर एग्जांपल यहां पे 0 पे 1 आएगा, वी आर गोइंग टू गेट पाई बाय 2 पे 0, पाई पे -1, 3 पाई बाय 2 पे वी आर गोइंग टू गेट 0. ओके, एंड 2 पाई पे वी आर गोइंग टू गेट 1. सो ऑब्वियसली ग्राफ ऐसा रहेगा, बट कॉस का फंक्शन तो पीरियोडिक फंक्शन है. सो इट गोज आगे भी जाता है. यहां पे पीछे भी हम लोग बना सकते हैं कॉस का फंक्शन.
बिल्कुल यहाँ पे भी हम लोग को -π/2 पे 0 मिलेगा. cos of minus theta is same as cos theta. So in this case, if you make a horizontal line and say मुझे y equal to half output चाहिए. If you make a horizontal line and say y equal to half output चाहिए, तो y equal to half output आपको कहाँ पे मिलेगा? एक तो यहाँ पे मिलेगा. ये एंगल हो गया आपका, राइट? सो ये एंगल हो गया π/3. दिस इज π/2. आई एम नो मोर मेंशनिंग इट. दूसरा एंगल यहां पे आएगा इधर. कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां पे वापस cos पॉजिटिव होता है. एंड दैट विल बी 2π - π/3. सिमेट्रिक रहता है ग्राफ अपना, तो 2π - π/3 विच इज 5π/3. सो π/3 पे हम लोग को हाफ मिल गया. 5π/3 पे हम लोग को हाफ मिल रहा है, राइट? एंड देन ओके, एंड देन वी कैन से यहां पे भी हाफ मिल जाएगा. ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये पॉइंट हो गया -π/3, हाफ. cos of minus theta is same as cos theta. यहां पे भी आपको हाफ मिल जाएगा. That will be -5π/3 पे हाफ. तो एवरीवेयर यू कैन सी पीरियोडिसिटी के कारण ना मल्टीपल एंगल्स आएगा, मल्टीपल ऑप्शंस आएगा वेयर यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ cos x as हाफ. सो इसमें कैसा होगा? वी कैन टेक द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम ऑल्सो टू अंडरस्टैंड. आपके पास π/3 है, आपके पास 5π/3 है. यू हैव ±5π/3 ±π/3. आपके पास ये सारे एंगल्स है, बट सब पे आपको वैल्यू क्या मिल रहा है? हाफ. सो लाइक दिस वी हैव इनफाइनाइट एंगल्स. एट ऑल इनफाइनाइट एंगल्स वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू एज हाफ. एंड देयरफॉर आई कैन से द फंक्शन इज many to 1. क्लियर है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी मुझे पता चलता है कि एक लाइन के ऐसे 4 इनपुट से अलग अलग, 4 नहीं, इनफाइनाइट है, बिकॉज द फंक्शन इज गोइंग टू बी पीरियोडिक. वो हाफ जो है वो बार बार आएगा बिकॉज इट इज ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 and 1. तो मल्टीपल प्लेसेस पे हम लोग को हाफ मिलने वाला है. एंड ड्यू टू दैट आई कैन से द फंक्शन इज many to 1. ओके, तो एक तो हम लोग का क्लियर हो गया कि फंक्शन many to 1. ओके, दूसरा नेक्स्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं? फंक्शन many to 1 तो है ही. उसके बाद हम लोग रेंज के बारे में क्या बोल सकते हैं? रेंज इज इक्वल टू -1 to 1. Everybody knows it is oscillating between -1 and 1, right? So range is equal to -1 to 1. बट कोडोमेन यहां पे भी ना सारे रियल नंबर्स है, तो हम लोग जो है वो सारा रियल नंबर लाइन यूज नहीं कर पा रहे. वी आर नॉट यूजिंग द एंटायर y एक्सिस. वी आर नॉट यूजिंग -∞ से इंफिनिटी पूरा. हम लोग एक खाली सर्टेन सेक्शन यूज कर पा रहे हैं, दैट इज -1 to 1 का सेक्शन जो है वही यूज कर रहे हैं हम लोग. सो कोडोमेन में यहां पे 2 है, कोडोमेन में -2 है, बट कोई भी एंगल उसके साथ रिलेट नहीं होगा. And whenever you get codomain as a superset, if the entire codomain is not used, whenever you get -1 to 1, खाली as a range उतना ही यूज हुआ है. Whenever you get range as a proper subset of codomain, right? यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि -1 to 1 जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन है, प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है. इक्वल टू कोडोमेन नहीं है. सो व्हेनेवर वी गेट रेंज एज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, वी से दैट द फंक्शन इज इनटू फंक्शन. रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ऑन टू फंक्शन, रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन, इनटू फंक्शन. तो अगर हम लोग पूरा का पूरा कोडोमेन यूज नहीं करते हैं, इन शॉर्ट अगर पूरा का पूरा कोडोमेन नहीं यूज कर सकते हम लोग हमारे फंक्शन की हेल्प से, तो हम लोग उसको बोलेंगे इनटू फंक्शन है. सो यहां पे ऐसे ही हो रहा है, कंट्रास्टिंग है दोनों एक दूसरे के. ये 1 to 1 एंड ऑन टू है,
और ये many to one and into है. ओके अच्छा 1 to 1 को हम लोग और एक नाम से बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंजेक्टिव. ऑन टू को हम लोग और एक नाम से बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सर्जेक्टिव. 1 to 1 is injective and on to is surjective. ओके यहां पे हम लोग many to 1 को और एक नाम से बुलाते हैं, मतलब ये ऑपोजिट हो गया 1 to 1 का. सो वी से इट इज नॉट इंजेक्टिव, इट इज नॉट इंजेक्टिव. और इनटू को हम लोग बोलते हैं नॉट सर्जेक्टिव. बस मतलब ऑपोजिट हो गया. ऐसा ही समझो कि एग्जैक्ट ऑपोजिट ले लिया हम लोग ने. सो 1 to 1 इज इंजेक्टिव, many to 1 इज नॉट इंजेक्टिव. On to is surjective and we say into is not surjective. Okay, this is exhaustive. पूरा का पूरा कोडोमेन यूज कर लेगा, यहां पे पूरा का पूरा कोडोमेन यूज नहीं हो रहा है. Okay, so that is our first two examples. Now let us move ahead. There are few more examples which we are going to do now. Okay. So next question will be like familiar to you. हम लोग ने already ऐसे questions class में किए हुए हैं. I'll show you the example. fx is x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. Okay, x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. हम लोग को ये फंक्शन दिया गया है ना. ये फंक्शन फाइंड आउट करना है वेदर 1 to 1 है, many to 1 है, into है, on to है. लेट अस चेक इट आउट. सो ग्राफ बना के, जैसे मैंने बोला, अगर हम लोग कर सकते हैं, वी शुड मेक द ग्राफ. तो इस फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन का मैंने आपको साइन स्कीम बताया हुआ है कैसे करना है. तो यहां पे इट वुड बी इजी, वी कैन यूज साइन स्कीम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, so 1 2 3 are the roots when this becomes 0, and it becomes 0 on x axis when the output is 0. We can say the roots are 1 2 3. फिर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा, देन हम लोग ये 3 क्रॉस करेंगे तो x माइनस 3 नेगेटिव हो जाएगा, बाकी दोनों अभी भी पॉजिटिव है. सो वी गेट पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा. जब हम लोग 2 क्रॉस करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. जब हम लोग 1 क्रॉस करेंगे, इस तरफ आएंगे तो तीनों नेगेटिव हो जाएगा. एंड देयरफॉर ऑन दिस साइड द फंक्शन इज गोइंग टू बी नेगेटिव. वेरी सिंपल. ये ऑलरेडी आप फेमिलियर हो इससे, हम लोग ने किया हुआ है. सो ड्यू टू दिस द ग्राफ वुड बी लाइक पॉजिटिव गोज डाउन, नेगेटिव पार्ट आएगा, गोज अप, पॉजिटिव आएगा और फिर नीचे चला जाएगा. और यहां पे 0 पे आपको आउटकम मिल जाएगा -6. 0 पे -6 आएगा. यू कैन चेक बाय पुटिंग इन द वैल्यू. 0 पे आपको आउटपुट मिलेगा -6. ओके, सो आई कैन देन से कि इसमें फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, फिर यहां पे मैक्सिमा आएगा, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर वापस मिनिमा आएगा, फिर वापस इंक्रीज हो रहा है. तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है यहां पे, if you make a horizontal line and if you require some output, say y equal to y1, तो आपको यहां पे 1 2 3 अलग अलग इनपुट्स मिलेंगे. x1, I would say x2, I would say x3. आपको यहां पे
वी कैन से 3 अलग अलग इनपुट्स पे सेम आउटपुट दिख रहा है, x1, x2, x3 तीनों पे y1 है, बराबर ना। तो ये क्या हो गया, ये कौन से टाइप का फंक्शन हो गया, मेनी इनपुट्स लीडिंग टू द सेम आउटपुट। क्लियरली फ्रॉम द डायग्राम आई कैन से दैट द फंक्शन इज many to one, it is not injective. Okay, it is many to one. अच्छा, अभी इसमें पॉलिनोमियल फंक्शंस को हम लोग ने डिटेल में विद द हेल्प ऑफ वर्कशीट्स पढ़ा हुआ है। तो इसमें जब हम लोग एक्सपैंड करते हैं, जब आप एक्सपैंड करोगे इसको, तो x x x you're going to get x cube and then there will be terms following it. x स्क्वायर का टर्म रहेगा, x का टर्म रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, डजंट मैटर। x क्यूब जो है वो आपका लीडिंग कोएफिशिएंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। सो जब आप इनपुट बढ़ाते हो, इंफिनिटी तक लेके जाते हो, तो ये भी जाएगा इंफिनिटी। और जब आप माइनस इंफिनिटी जाओगे, तो सिंस इट इज एन ऑड पावर, तो नेगेटिव इनपुट विल हैव नेगेटिव आउटपुट, तो यहां पे माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। सो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ग्राफ जाने वाला है, राइट। सो दैट टेल्स मी कि बाय रेंजेस ऑल रियल नंबर्स। ओके, so nothing was said here about the domain, about the codomain. So right now I'm putting in that we assume, since all real numbers are allowed, domain is all real numbers and codomain is all real numbers. Okay, so ये क्वेश्चन में देना होना चाहिए, दिया होना चाहिए। अगर नहीं दिया है और खाली पॉलिनोमियल दिया है, तो पॉलिनोमियल में ऑल रियल नंबर्स कैन बी द इनपुट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इफ यू आर गेटिंग ऑल रियल नंबर्स एज आउटपुट, तो वो अपना रेंज हो गया। अभी अपना कोडोमेन जो है वो रेंज से कम नहीं हो सकता है। रेंज कैन बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन भी पॉसिबल है, बट रेंज कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। ओके, सो इन दिस सिनेरियो वी कीप and we say the function is going to be many to one, and since the range is equal to all real numbers, function is called as ONT. Okay, इसको अलग नाम से भी हम लोग बुला सकते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं surjective, but not इंजेक्टिव। सिंपल, 1 to 1 नहीं है, many to 1 है, इसलिए नॉट इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव, क्योंकि ऑन टू है। सो दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। सिंपल है, डायग्राम बना के हम लोग साइन स्कीम यूज करके हम लोग कर सकते हैं। 1 2 3 विल बी द रूट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है अगेन, यहाँ पे हम लोग ने मेंशन करना है पहले, इट इज R2R एंड फंक्शन fx जो है वो है x क्यूब प्लस 5x प्लस 1। ऐसा जरूरी नहीं हमेशा R2R मिलेगा, आगे मैंने सम्स डाले जहां पे कोडोमेन और डोमेन उन्होंने अच्छे से दिया हुआ है और अलग दिया हुआ है। बट राइट नाउ वी हैव fx as x क्यूब प्लस 5x प्लस 1। अभी इस फंक्शन का अगर हम लोग को ग्राफ बनाना है, क्यूबिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक तो हम लोग को मालूम है, पैराबोला है, क्यूबिक फंक्शन है, और वो सीधा साधा क्यूबिक फंक्शन नहीं है, लाइक डायरेक्टली x क्यूब दे दिया या x क्यूब माइनस 1 दे दिया, वैसा फंक्शन नहीं है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसके जैसा फैक्टराइज भी नहीं हो पाएगा। अगर फैक्टराइज होता तो मैं उस मेथड से कर देता, साइन स्कीम बना के हम लोग ग्राफ प्लॉट करके निकाल सकते थे, बट फैक्टराइज भी नहीं हो पाएगा ये। सो व्हाट डू वी डू इन दिस फंक्शन fx as x क्यूब प्लस 5x, वी टेक अ डेरिवेटिव। यहां से आपको समझेगा कि कैसे हम लोग डेरिवेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड
range to find monotonic, to find whether the function is 1 to 1 ki many to 1 in this question, you will understand that अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालते, डेरिवेटिव आता है 3x square plus 5. Since 3x square plus 5 is going to be greater than or equal to 5 for all x belonging to the set of real numbers, we say डेरिवेटिव पॉजिटिव है. For all real numbers, therefore fx is monotonically you could have also said strictly increasing. यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो तो हो ही नहीं रहा है, so monotonically or strictly increasing. क्लियर है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना है, और ये भी क्लियर है कि अगर इंफिनिटी डालेंगे, बड़ा इनपुट डालेंगे तो बड़ा आउटपुट आएगा, इंफिनिटी आएगा, माइनस इंफिनिटी डालेंगे तो माइनस इंफिनिटी आएगा, लोअर आउटपुट्स आएंगे. नेगेटिव वैल्यूज पे यू आर गोइंग टू गेट माइनस इंफिनिटी, पॉजिटिव वैल्यूज पे यू आर गोइंग टू गेट इंफिनिटी. ओके, एक सेकेंड. Yes. So right now we have to plot the graph. 0 पे वैल्यू 1 आएगा. हाँ, ये सारे पॉइंट जो है y एक्सिस के साथ x एक्सिस के साथ कर लेंगे तो अच्छा है. 0 पे 1 आएगा. Okay. Then since the function is increasing, इंफिनिटी पे इंफिनिटी आने वाला है, माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी आने वाला है, तो ग्राफ would go like this, monotonically increasing, और 0 पे ही आपको लोवेस्ट डेरिवेटिव आने वाला है ना. वो भी आप समझ लो कि आपका मिनिमम स्लोप जो है टेंजेंट का वो 0 पे है, एंड दैट इज 5. सो फंक्शन जो है वो इंक्रीज होगा. यहां पे सबसे लोवेस्ट स्लोप का टेंजेंट आएगा. अगर आप टेंजेंट बनाओगे बाकी सब जगह पे हायर स्लोप का आएगा, एंड इट गोज लाइक दिस. सो यहां पे थोड़ा ऐसा बेंड जैसा रहेगा, बट स्टिल हियर द स्लोप विल बी 5. इट इज नॉट 0. इट इज नॉट लाइक एक्स क्यूब पे वहां पे 0 हो जाता है. सो यहां पे अपने को वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, बट इट इज नॉट ड्यू टू डेरिवेटिव एज 0. एंड यहां पे दिस इज हाउ इट गोज द ग्राफ. मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ है, 0,1 से पास होने वाला है. 0 पे आपको लोवेस्ट स्लोप का टेंजेंट मिलेगा, एंड दैट टू विल बी लोवेस्ट 5. स्लोप विल बी 5. बाकी जगह पे ना इंक्लिनेशन ज्यादा रहेगा, टेंजेंट का एंगल विथ एक्स एक्सिस ज्यादा रहेगा. ओके, so that is how the thing is. Increasing, slope is 5, then again increasing. So आप देख सकते हो function is 1 to 1 again. Function is monotonically increasing. Function is having all real numbers inside the range. So we say the function is 1 to 1 and on to, right? 1 to 1 and on to. Injective as well as surjective. Injective as well as surjective. Injective as well as surjective को हम लोग बोल सकते हैं bijective. So injective as well as surjective को हम लोग एक नया नाम भी दे सकते हैं, that is called as bijective. Okay. So that is the idea. 1 to 1 and on to है, इंजेक्टिव as well as surjective है, bijective बोल देंगे उसको. So that is how I can use the derivative to my benefit while finding the range of this function. The range will be all real numbers. Monotonicity tells me that the function is monotonically increasing. Due to that, we say the function is 1 to 1, right? So 1 to 1 and on to function. Okay.
तो थोड़े और एग्जाम्पल्स करते हैं इस कैटेगरी में। सी, ये भी क्यूबिक है, वो भी क्यूबिक है, दोनों पॉलिनोमियल्स है, दोनों में सब रियल नंबर्स चलते हैं, बट इस फंक्शन में फैक्टराइज किया हुआ है, इसलिए आई कैन मेक द वेव। वहां पे हम लोग फैक्टराइज नहीं कर पा रहे क्वेश्चन को, एंड देयरफॉर आई एम मेकिंग द ग्राफ। ओके, ठीक। So we go to the next question quickly. Similar questions. Okay. F belongs to all real numbers except -1 to R. Okay, F belongs to all real numbers except -1 to all real numbers सामने। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। ओके, एंड द फंक्शन इज fx इक्वल टू x minus 1 upon x plus 1। अभी ये हो गया रैशनल फंक्शन। ओके, रैशनल फंक्शन को हम लोग को थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। ऐसे फंक्शंस भी मैंने आपको क्लास में प्लॉट कराया है, प्रोसीजर से करवाया था। मैंने पहले बोला था आपको कि आप जीरोस फाइंड कर लो, जीरोस फाइंड कर लो। जीरोस फाइंड कर लो मतलब वो एक्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो जहां पे फंक्शन का आउटपुट जीरो होने वाला है। तो फंक्शन का आउटपुट जीरो होने वाला है व्हेन एक्स इज 1। ओके, फिर हम लोग पोल्स फाइंड करेंगे। पोल्स फाइंड करना है। पोल्स या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट्स। ओके, तो वापस पूरा हम लोग प्रोसीजर करते हैं और यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं कि डेरिवेटिव हमको कैसे हेल्प करेगा, बट ये सब मैं आपके साथ कर चुका हूं ड्यूरिंग द क्लासेस। वर्टिकल एसिम्पटोट्स मतलब डिनोमिनेटर कहां पे जीरो हो रहा है। डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है एट x इक्वल टू -1, तो ये आपका वर्टिकल एसिम्पटोट हो जाएगा। यहां पे आपको आउटपुट एज इंफिनिटी मिलेगा। देन देयर इज साइन चेंजेस। साइन चेंज, साइन चेंज आपको कैसे मिलेगा? वी कैन से यहाँ पे -1 प्लॉट करना है, यहाँ पे 1 प्लॉट करना है। इधर x -1 0 होता है, यहाँ पे x +1 0 होता है। तो हम लोग का मेथड वही रहेगा, एट ऑन द राइट मोस्ट बोथ आर पॉजिटिव, देयरफॉर वी हैव पॉजिटिव, एंड देन व्हेन वी क्रॉस 1 वी से x -1 नेगेटिव हो गया, सो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव यू आर गोइंग टू गेट नेगेटिव। देन वी क्रॉस -1, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव वी आर गोइंग टू गेट अगेन एज पॉजिटिव। तो ये अपना साइन चेंज होने वाला है। ओके, नाउ लेट अस डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। f dash x फाइंड करते हैं। सो f dash x क्या आएगा? x + 1 the whole square, x + 1 into derivative of x - 1, 1 आएगा, u by v derivative, v square v into derivative of u minus u into derivative of v। तो हम लोग को यहां पे मिल रहा है x x कट जाएगा, 2 upon x + 1 the whole square आएगा। So what I see is 2 upon 1 plus x the whole square या 2 upon x plus 1 the whole square। तो since x plus 1 the whole square हमेशा 0 या तो 0 से बड़ा रहेगा। 0 कहां पे रहेगा? -1 पे। तो -1 पे तो डेरिवेटिव इंफिनिटी आने वाला है, बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट अ वर्टिकल टेंजेंट। सो ऐसे चलो -1 एक्सक्लूड कर देते हैं फिलहाल के लिए, और ऐसे भी वो डोमेन में नहीं है, तो 0 वहां पे होता है व्हेन
when x is -1, तो जब हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे तो ऑब्वियसली रेसिप्रोकल लेंगे तो भी हम लोग को पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलेगा, राइट. डिनोमिनेटर हमेशा जीरो ही होने वाला, ग्रेटर देन जीरो ही होने वाला है बिकॉज इट इज अ स्क्वायर. सो फॉर एनी वैल्यू यू कैन से दैट the derivative is going to be greater than 0. Derivative is going to be greater than 0, and that tells us कि fx is again monotonically fx is monotonically increasing. So that tells us fx is monotonically increasing. Okay. So fx is x minus 1 upon x plus 1. हम लोग ने डेरिवेटिव ले लिया 2 upon x plus 1 the whole square. आ गया डेरिवेटिव which is always positive, and that tells me that function is monotonically increasing. मतलब monotonically increasing मतलब ग्राफ हमेशा ऐसा ऊपर ही जाएगा. Graph will always increase. Okay, so let us come to the graph now, plotting the graph. Okay, डेरिवेटिव से पता चल गया फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बट फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो कैसे इंक्रीज हो रहा है, हाउ इट इज गोइंग टू इंक्रीज, व्हाट पॉइंट्स इट इज गोइंग टू पास एंड ऑल. वी कैन एक्चुअली यूज दिस नाउ. यहां पे जीरो कब हो रहा है, आउटपुट जीरो हो रहा है 1 पे. ओके, आउटपुट जीरो हो रहा है 1 पे. पोल कहां पे आ रहा है, पोल आ रहा है x इक्वल टू -1 पे. सो x इक्वल टू -1 मींस दैट इज अ वर्टिकल एसिम्पटोट. जीरो अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, इनपुट अगर आपका जीरो है तो आउटपुट रहेगा -1. सो दैट ऑल्सो इज necessary to plot. Zero पे the output is going to be -1. Yes, now this we have done in limits. So -1 पे हम लोग को वर्टिकल एसिम्पटोट मिल रहा है, बट हम लोग साइन चेंजेस में देख सकते हैं कि -1 के राइट में फंक्शन नेगेटिव है, तो -1 पे यस इंफिनिटी आएगा, बट बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से व्हेन वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ -1 द फंक्शन इज गोइंग टू बी एट -इंफिनिटी. सो -इंफिनिटी से फंक्शन चालू होगा, गोस लाइक दिस. 0 पे -1 आएगा, 1 पे 0 आएगा, and it goes on increasing. But will it go infinity? It will be starting from -infinity, it goes on increasing. It is a monotonically increasing function, but will it go to infinity? That question we have in our mind now. So infinity जाएगा कि नहीं जाएगा, हम लोग को वो चेक करना है. And that brings into the fourth point. I'll write it here. Fourth point is horizontal asymptotes. Right? End behavior. You can also call it as end behavior, and that will give rise to horizontal asymptotes. और end behavior कैसे फाइंड करते हैं, आपको इनपुट डालना है इंफिनिटी. अब इंफिनिटी इनपुट नहीं डाल सकते, I'll say x tends to infinity. राइट, सो बड़ा वैल्यू अगर हमारा इनपुट है तो फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एंड बिहेवियर. इट कैन बी ऑब्वियसली पॉजिटिव इंफिनिटी ऑल्सो, माइनस इंफिनिटी ऑल्सो, बट ये फंक्शन में सिमिलर बिहेवियर रहेगा बोथ एंड्स पे. सो यू कैन हैव लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी x minus 1 upon x plus 1. ओके, सो हम लोग जब यहां पे सॉल्व करने जाएंगे, what we'll do is actually we divide by x. So 1 minus 1 by x आएगा upon 1 plus 1 by x आएगा. अब x infinity है, x is infinity, so 1 by x is going to be 0, and since 1 by x is going to be 0, the outcome is going to be 1 minus 0 upon 1 plus 0, which is 1. So outcome ये basic infinity का सम है, limits का सम है, so outcome is 1. That means
फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, आई अग्री, बट इट इज नॉट लाइक कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इंफिनिटी पे इंफिनिटी जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है. सो क्या है यहां पे है एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, और जैसा वर्टिकल एसिम्पटोट है वैसे यहां पे एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है y इक्वल टू 1. आगे इसके हम लोग ने पॉलिनोमियल फंक्शंस किया था, वो पॉलिनोमियल फंक्शंस में इंफिनिटी पे इंफिनिटी आ रहा था, माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी आ रहा था, बट ये वो पॉलिनोमियल फंक्शन के जैसा बिहेव नहीं करेगा. इट इज अ रैशनल फंक्शन, इट इज फंक्शन अपॉन फंक्शन, सो इट इज अ रैशनल फंक्शन. पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल फंक्शन रैशनल फंक्शन है ये. सो दिस विल नॉट बिहेव लाइक अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज अ रैशनल फंक्शन. ओके, सो इसका बिहेवियर थोड़ा अलग रहेगा. एंड व्हाट विल हैपन नाउ इज फंक्शन इंक्रीजिंग ही बताना है आपको, बट इट विल बी slowly tending to 1. When x tends to infinity, the output is going to tend to 1. And not only on that side, we can put minus infinity also and prove that कि यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है. So function जब minus infinity को tend करेगा, if x tends to minus infinity, function जब minus infinity को tend करेगा, तभी भी हम लोग का आउटकम वही रहेगा. सो यहां पे भी हम लोग बोलेंगे चलो माइनस इंफिनिटी पे भी 1 से ही स्टार्ट होगा, बट ऊपर से स्टार्ट होगा, एंड इट इज गोइंग टू गो ऑन इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग. माइनस इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी कुछ चेंज नहीं होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी एट 1 ओनली. बट हाँ, नीचे से स्टार्ट नहीं होगा, वो y इक्वल टू 1 को इंटरसेक्ट करके नहीं जाएगा. y इक्वल टू 1 इनफैक्ट आपको कभी आउटपुट मिलेगा ही नहीं. इवन इफ यू ट्राई कि चलो भाई y इक्वल टू 1 को आउटपुट ले लेते, कभी आएगा y इक्वल टू 1? कौन से वैल्यूज ऑफ x पे आएगा y इक्वल टू 1? इवन इफ यू ट्राई, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 1, x माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 1, और आप बोलोगे एक्स एक्स कैंसिल हो जाना चाहिए, तो फिर आपको क्या मिलना चाहिए? माइनस 1 इक्वल टू 1. वो तो पॉसिबल नहीं है. फॉर नो वैल्यूज ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 1 तो नहीं हो सकता है. सो y इक्वल टू 1 आपको कभी नहीं मिलेगा. y इक्वल टू 1 मिलने के लिए ना माइनस 1 इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी आपको y इक्वल टू 1 मिलेगा. बट दैट इज नॉट पॉसिबल. सो देयर आर नो इनपुट्स which can give you the output as 1, y इक्वल टू 1. ओके, सो ऐसा पर्टिकुलर आउटपुट्स वगैरह चेक करना तो चेक कर सकते हैं आप, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. Yes, so this is how derivative will help us to find out the flow of the graph, and these are the points. This all points we have done before also. Now we are just adding the derivatives part to it, because there will be now functions where you will need derivative to find out maximum value, minimum value, range and all everything. यहां पे फिलहाल मुझे ये तो पता चल गया फंक्शन 1 to 1 है, बिकॉज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है. सारे इनपुट्स पे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस वन इनपुट नहीं डाल सकते, बाकी इनपुट्स पे फंक्शन इज लाइक इंक्रीजिंग. रेंज की बात करते हैं, जैसे कि बोला y इक्वल टू 1 आउटपुट में नहीं दिख रहा है, तो रेंज क्या है यहां पे फंक्शन का? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1. सो इसमें से सब यूज हुआ है, 1 यूज नहीं हुआ है. स्टिल we'll have to say range is a proper subset of codomain, because proper subset का definition क्या है? If A is a proper subset of B, all elements of A are there in B, but there is at least one element in B which is not there in A. I repeat the definition. If A is a proper subset of B, all elements of A are there in B, but there is at least one element in B which is not there in A. और ऐसा ही हो रहा है. रेंज में 1 नहीं है बट कोडोमेन में है, तो मतलब वो यूज नहीं हुआ है. और अगर
सारे के सारे एलिमेंट्स यूज नहीं हुए, एक भी एलिमेंट अगर छूटता है, वी से द फंक्शन इज इंजेक्टिव but not surjective. Okay, function is injective but not surjective. I can also call, definitely the function is one-to-one and into. So हम लोग यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, function is one-to-one and into. कुछ भी ऑप्शन में दे सकते हैं. into है बिकॉज वो वन जो है रेंज में, कोडोमेन में है, सॉरी, बट रेंज में नहीं है. दिस वाई इट इज कॉल्ड एज एन into function. Okay, so this is the understanding which you have to take from a rational function, how derivative has been used to plot the graph, how it is monotonically increasing function because of derivative being greater than 0, and because of that we can say the function is one-to-one function. It is one-to-one and into function. Okay, तो ये अच्छे से ये एग्जाम्पल अगर आप कर लेते हो, 4 पॉइंट्स हम लोग को चाहिए, तो आगे का क्वेश्चंस जो है हम लोग का आसान हो जाएगा. ओके, सो लेट अस गो ahead with the next few questions. Okay, we'll do that in the next video. Okay.